Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I'm Divya Kataria, and as you have already seen in the thumbnail of this video that we are going to talk about whether you can clear CLAT in 8 months. By the way, let me tell you my rank. So my rank in CLAT 2026 was 731 and my rank in ALET 2026 was All India rank 47, and now I'll be going to NLU Delhi this year. CLAT or the Common Law Admission Test is of 120 marks and we have 5 sections in it. First one is reading comprehension or English in simple language. The second one is GK and current affairs. The third one is legal reasoning. The fourth is logical reasoning, which includes critical reasoning plus analytical reasoning. And the last subject is quantitative techniques. And basic maths, which we covered around class 8. Okay? So this was a basic overview of the CLAT. Now let's get deep into the video. Okay, so now start कैसे करना है, okay? So first of all, last 5 साल के PYQs उठाओ, CLAT as well as ALET. But ये वीडियो थोड़ा CLAT स्पेसिफिक होने वाला है, तो I'll just tell you about CLAT majorly. तो क्लैट के लास्ट 5 ईयर्स के PYQs उठाओ, उनको एज अ मॉक्स लगाओ, ठीक है? अगर तुमने अभी स्टार्ट किया एंड यू आर नॉट एबल टू फिनिश द मॉक्स ऑन टाइम, देन तुम 2.5 घंटे का भी टाइमर लगा लो, बिकॉज नाउ यू आर बिगिनर, सो इट्स फाइन. उसको मॉक की तरह सॉल्व करो, मॉक की तरह सॉल्व नहीं किया जाता तो उसको सेक्शनल्स की तरह सॉल्व करो, ठीक है? एंड देन अपने आंसर्स बाद में आंसर की से मैच करना एंड देन यू सी कि मतलब कैसे क्या कितना तुम्हारा स्कोर बैठ रहा है. मतलब मेन रीज़न स्कोर कैलकुलेट नहीं करना है PYQ से, लेकिन तुम्हें उससे समझ आएगा कि हाउ डज द एग्जाम पैटर्न एक्चुअली वर्क्स. बिकॉज कई बार हम मॉक्स देते रहते हैं. लाइक आज मैं कोचिंग में गई फॉर मेंटोरशिप एंड मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने PYQ एनालिसिस आज तक किया ही नहीं है. बट आई वुड से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इससे तुम्हें पेपर पैटर्न का अंदाजा लगेगा, राइट? क्योंकि मॉक्स तुम दे रहे हो, हर कोचिंग का अलग अलग मॉक का पैटर्न होता है, राइट? तो बिफोर स्टार्टिंग गिविंग मॉक्स, एक्चुअली एनालाइज द एक्चुअल CLAT पेपर ऑफ लास्ट 5 ईयर्स और लास्ट 10 साल कर दो, फिर तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है? सो बिफोर वी कंटिन्यू इन द वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट एन अमेजिंग इनिशिएटिव. सो माई फ्रेंड Dipanshu Patel, who is also going to be an upcoming student at HNLU Raipur, has decided to change this game. Dipanshu is the host and CEO of his brand new coaching, which is CLAT Matters, which is going to launch a full CLAT 2027 batch. And can you guess the prize? The price is even less than the fee you pay for giving the CLAT examination. So the fees for his batch is only rupees 3,500. And if you apply my coupon code, which is Divya500, then you get an additional discount of 500 rupees, which means that you only have to pay rupees 3,000 for whole batch. So let me tell you about the features of this batch. It includes the live lectures of English, static GK and current affairs, and the live classes for legal reasoning as well as critical reasoning, and recorded lectures of maths along with the list of best lectures for analytical reasoning. Along with this, it also includes daily practice questions, quizzes, strategy sessions every 15 days, weekly doubt sessions along with personal and emotional doubts as well. And they are going to provide you with more than 50 sectionals, 10 to 15 CLAT replica mocks, and a list of most important topics of the month as well as the year. And you're also going to get the recordings of the live classes. So all of those who are interested, you can find the WhatsApp number of Dipanshu Patel in my description box as well as the comment. And do not forget to use my code Divya500 so that you can get an additional discount of 500. Now moving towards our 8-month strategy to clear CLAT. Now there's another non-negotiable, which is newspapers. So how newspapers are going to help you. So first of all, you can take any newspaper of your choice. And अभी अगर मान लो तुम अभी भी start कर रहे हो, newspaper reading, so I would say you can go to an easier paper. Okay, so it may be Times of India or Indian Express, and then you can switch to the Hindu if you are not comfortable with the Hindu at the first place. Okay, so the Hindu is the best. First one is the GK itself, okay? So because you are getting a lot of topics covered in the newspapers, and ताकि जो भी topics फिलहाल चल रहे हैं, right? तुम जान सकते हो कौन कौन से topics चल रहे हैं फिलहाल न्यूज़ में. We do not have to focus on ज़्यादा political ज़्यादा politics से related topics या फिर like murders and crimes, no. Like कोई international summits हो रहे हैं या फिर इस type के कुछ policy making something, तो ऐसी चीज़ों पे हमको focus करना था newspapers के अंदर. तो इससे हमारी GK improve होगी, right? Second thing, जब हम एडिटोरियल्स रीड करेंगे, you have to go to the editors section and you have to read the editorials of various journals. Read at least 3 to 4 editorials per day. You don't have just to read the editorials, okay? तुम्हें समझना है, like इस टाइप से उसको रीड करो कि अभी तुमको उसको एक बार रीड करके किसी और को समझाना है बिना देखे, ठीक है? तो इससे क्या होगा, तुम्हारी रिटेंशन स्किल्स इंप्रूव होंगे, राइट? एंड जो भी तुम्हें नए वर्ड्स वहाँ पे मिलते हैं, एक डायरी बनाओ, उसको मेंटेन करो एंड वहाँ पे उसके मीनिंग लिखो, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, राइट? तो इससे तुम्हारी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी. So इस टाइप से newspaper helps you with the CR as well as RC and the GK as well. Okay, now let's talk about the section wise strategy. So starting with the reading comprehension, which is also called English.
So for English, as I have previously told you, that you can read the newspapers and you can also refer to the Aeon essays, okay? And you can use word power made easy by Norman for increasing, enhancing your vocabulary and grammar. Yes, and तुम्हें like जैसे ये कुछ बेसिक टॉपिक्स है जैसे कि पोएटिक डिवाइसेस हो गए या फिर टोन्स ऑफ द ऑथर, ये सब चीज़ें सीखनी है. एंड देन यू हैव टू अपने थोड़े अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करो कि व्हाट आर मेन आइडियाज, व्हाट इज इन्फ्रेंस. देन यू हैव टू प्रैक्टिस देयर सेक्शंस, ठीक है. एंड नाउ व्हाट अबाउट सेक्शंस, यू कैन एक्सेस देम थ्रू टेलीग्राम या फिर कहीं से भी, ठीक है. या तुम्हारे कोचिंग के मटेरियल RSMs वगैरह जो भी हैं वहाँ से अपनी चीज़ें प्रैक्टिस करो. नाउ मूविंग टुवर्ड्स जीके एंड करंट अफेयर्स पार्ट. तो उसके लिए क्या करना है, तुम्हारी जो मेन कंपेंडियम तुम यूज़ करते हो, कोई भी मेजर कोचिंग की तो कंपेंडियम लो, लेट इट बी क्लैट पोस्ट और क्लैट एक्सप्रेस या फिर कोई भी, ठीक है. एंड उसको रीड करो. लाइक जो भी टॉपिक्स है आवश्यक कि बहुत ज़्यादा भर के टॉपिक्स नहीं ले लेना. सोर्स अपना एक से दो सोर्स रखो बढ़िया लेवल के, ठीक है. एंड उसको ही बार बार रिविजन करना है. लाइक तुमने एक भी कोई भी मेजर कंपेंडियम ले लिया है एंड उसके साथ में तुम क्या कर सकते हो, लाइक न्यूज़पेपर्स तुम रीड करोगे, वहाँ से तुमको थोड़ी नॉलेज मिले, राइट. एंड उसके बाकी तुम जीके टुडे के PDFs वीकली PDFs आते हैं, उनको रीड कर सकते हो, राइट. एंड बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जो कि जीके क्विज कंडक्ट करते हैं. सो गो एंड अटेंड दोज जीके क्विज, क्योंकि भर भर के रिसोर्सेज हैं, उनकी कोई कमी नहीं है. सो बस तुम पढ़ने वाले होने चाहिए, राइट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लीगल रीजनिंग. तो लीगल रीजनिंग के लिए तुम्हें कुछ भर के रिसोर्सेज लाइक बेयर एक्ट्स वगैरह पढ़ने की या फिर उठा के पूरे लॉज ही पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू शुड नो द बेसिक टॉपिक्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के या फिर क्रिमिनल लॉ या फिर टॉपिक्स जैसे कि टॉर्ट्स वगैरह, इनको कंप्लीट करोगे. इनका मेन पर्पस क्या होता है, इनको रीड करने का, ताकि जब मॉक में या फिर रियल क्लैट एग्जाम में वो टॉपिक आएगा तुम ऑलरेडी फेमिलियर हो उस चीज़ से, ठीक है. तो तुम कुछ खास ट्रायल लीगल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, बट हम इसलिए रीड करते हैं कि जब अगर एग्जाम में ये हमारे पास टॉपिक आता है तो वी आर ऑलरेडी फेमिलियर, तो हम जल्दी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें. नाउ मूविंग टुवर्ड क्रिटिकल रीजनिंग. इसके अंदर लाइक तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे लाइक अबाउट इन्फ्रेंस, अजम्पशंस, स्ट्रेंथन एंड वीकन, लॉजिकल रिडक्शन. तो इसके अंदर तुमको क्या करना है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स. लेट इट बी योर कोचिंग के क्लासेस से तुम कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हो, फिर यूट्यूब में तुम टॉपिक डालो एंड यू विल गेट अ लिस्ट, लाइक यू विल गेट अ गुड बंच ऑफ वीडियोज. सो सिंस जो भी हमारा फेवरेट टीचर है, जो भी तुम्हें जहाँ से समझ आता है वहाँ से उस चीज़ को पढ़ो, देन अप्लाई इट्स क्वेश्चंस. एंड आई एम टेलिंग यू सम रिसोर्सेज. सो फॉर वर्बल रीजनिंग विच इज क्रिटिकल रीजनिंग, यू कैन यूज योर RSMs एंड RS अग्रवाल की वर्बल रीजनिंग, और यू कैन यूज़ LSAT की पेपर, उसमें बहुत अच्छी क्रिटिकल रीजनिंग होती है. और यू कैन यूज़ GMAT डायरेक्टरी करके है ऑनलाइन, तो वहाँ पे जाके तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. एंड फॉर एनालिटिकल रीजनिंग, बिकॉज इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू क्लैट सिंस लास्ट 2 years. हालांकि वो अराउंड 2015 भी हुआ करता था, लेकिन बीच में एनालिटिकल रीजनिंग एकदम गायब हो गया था. बट सिंस लास्ट 2 years हम देख रहे हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ रहे हैं. तो उसके लिए तुम्हें टॉपिक्स करने जैसे सिलोजिज्म्स एंड आई वुड से ब्लड रिलेशंस, सीटिंग अरेंजमेंट्स, क्लॉक्स, कैलेंडर्स भी हम साइड में करके चलते हैं. तो ये सब जो है और भी कुछ टॉपिक्स हुए लाइक वर्ड सीरीज, नंबर सीरीज, इन सब क्वेश्चंस को तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, देन यू हैव टू प्रैक्टिस दिस अगैन एंड अगैन. लाइक AR समथिंग कि तुमको प्रैक्टिस करने से आएगा एंड वहीं से तुम्हारी स्पीड इंक्रीज होगी, राइट. And the best resources for analytical reasoning, I would say M.K. Pandey ki analytical reasoning, or you can also refer to the RS Agarwal ki non-verbal reasoning. Now moving towards the last section, which is quantitative techniques. So I'm a person who is horrible at maths, not just this time but since my childhood बहुत ही घटिया रहा है मेरा maths. But the thing is कि क्लास में से कुछ बहुत ही ऐसे कुछ ट्रिग्नोमेट्री जैसे या फिर कैलकुलस जैसे टॉपिक्स नहीं आते. इट्स जस्ट बेसिक मैथ्स जो कि तुमने 7th 8th तक किया है. तो लाइक मोस्ट इसमें बेसिक टॉपिक्स में क्या करना है, सिंपल एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस एंड आई वुड से मेंसुरेशन के टॉपिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. या एंड अभी तुम्हारे पास टाइम है तो तुम लाइक टू बी ऑन अ सेफर स्पेस, बट आई डोंट थिंक इसकी कोई जरूरत है. यू कैन ऑल्सो डू रिवर्स शेप के क्वेश्चन या फिर मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, वो कर सकते हो, ठीक है. बट आई हैव टोल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो दिस इज अबाउट द QT एंड यू हैव टू डेली, मतलब आई वुड से अगर तुम वीक हो मैथ्स में तो आई वुड से कि डेली मैथ्स के 2 से 3 DI सॉल्व करो एंड इस टाइमर के साथ सॉल्व करो. रैंडम कैलकुलेशंस करो, कोई भी 4 नंबर उठाए उनको 3 से मल्टीप्लाई किया, उनको कुछ भी सॉल्व करो, किसी भी नंबर से डिवाइड करो. इससे तुम्हारी कैलकुलेशंस फास्ट हो, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू हैव अ कैलकुलेटर इन एग्जाम, राइट. एंड कॉन्ट्स कई बार बहुत लेंथी हो जाता है, तो अपनी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए उस चीज़ के लिए. तो यहाँ पे मैंने मोटा मोटा कवर कर दिया है कि हाउ टू डील विद पर्टिकुलर सेक्शंस. नाउ मूविंग टुवर्ड्स थोड़ा जनरल स्ट्रैटेजी कि हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स. तो सबसे पहले अभी तुम देख लो कि कैसे, अभी तुम्हारे पास टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का, तो तुम अलग अलग टाइम पे देखो कि क्या चीज़ मैं करना चाहता हूँ. तुम ऐसा करो कि आज तुमने कोई उठा के देखा कि आज मैं पहले इस सेक्शन से सॉल्व करता हूँ, देन तुम देखो कि क्या वो स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए वर्क कर रही है. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम इंग्लिश सॉल्व करो, तो आई वुड से कि इंग्लिश जैसे कि ऑलरेडी थोड़ा वो रीडिंग हैवी सेक्शन है, तो ऐसा नहीं करो कि इंग्लिश के बाद तुम डायरेक्टली लॉजिकल सॉल्व करने लग गए या फिर लीगल सॉल्व करने लगे. फिर ऐसे तीनों से मोस्ट
लाइक रीडिंग के कौन कौन से 3 सेक्शंस हैं मेनली, इंग्लिश, लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। वो ट्राई कि इन सेक्शंस के बीच में गैप रखो। तो गैप पे तुम उसके अंदर ऐसा कर सकते हो कि अगर तुम बहुत एग्जॉस्ट हो किसी पैसेज से या किसी सेक्शन से, तो बीच में दूसरे पैसेज पे आ जाओ, राइट। या फिर लाइक मान लो मैं लीगल रीजनिंग बहुत देर से रीड कर रही हूँ, अब मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे डायरेक्टली लॉजिकल रीजनिंग पे नहीं जाना, तो यू कैन ट्राई टू सॉल्व अ मैथ्स का DI इन दैट बिटवीन पार्ट, सो दैट तुम्हारा माइंड भी रिफ्रेश हो। तो दिस वॉज अ बेसिक मॉक स्ट्रेटजी। Yes, so this is all I want to cover in this video, and I'll also be dropping a link of my CLAT and ALET videos in the description, which I already posted, and those are more informative and more descriptive. So I recommend you to watch those videos. The links are in the description, and if you have any doubts, you can ask me in the comments box, or you can DM me on Instagram. And if you want me to cover anything separately, ki how to analyze mocks or something steps, then just please drop a comment. I would love to work on that. So thank you guys, this is all for this video. Please subscribe to my channel so that you can get more informative videos if you want, and I'll also be making vlogs in NLU Delhi when I go there in July. So okay, bye.